So welcome all doctors today in this session. We are thankful to Dabur for organizing this CME, and the topic of the today's session is diabetes management with Ayurveda. We have one of the legend, I can say internationally, he is there, and his name needs not any introduction. Dr. G.S. Tomar with us as a speaker, and I think if any one of us belongs to Ayurveda, and if we don't know G.S. Tomar, I think then we are not exactly into Ayurveda. So Dr. Durga Prasad will take on from here. And I'm Dr. Piyush Juneja. I again welcome all of you for this session today. Thank you so much for joining in this lovely afternoon. And Dr. Durga Prasad, you can please continue. Thank you. Thank you, Dr. Piyush. Hello, doctors. Good afternoon. Thank you very much for joining us again. So, in continuation to our webinar series, we are again starting one more event on today. One more webinar. We had two successful webinars in this season, and both were received very positively by you all. Thank you very much for that. So, keeping in tandem, so today we are having one of the most renowned Ayurveda practitioner, teacher, professor, guru, mentor, and many things. Professor G.S. Tomarji, Professor Girendra Singh Tomarji. So hope most of the doctors, as Piyush told, most of the doctors know him, know his name, know his contributions. To just give you his introduction, Professor Tomarji is graduated in 1955 from Gwalior University, got a gold medal in graduation. Then he did his MD in Ayurveda from Kai Chikitsa and PhD from under the guidance of renowned Padma Shri Professor R.S. Singh ji. आदरणीय गुरुजी आर एस सिंह जी बहुत लोगों को प्रेरणा दिए थे आयुर्वेद पढ़ने के लिए. तो आदरणीय तोमर जी वन ऑफ द फेवरेट शिष्या से आर एस सिंह जी का. तो पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर तोमर जी ने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन हुए थे एंड एज ए लेक्चरर एज ए प्रिंसिपल हांडिया कॉलेज में मेडिकल सुपरिटेंडेंट काम किए थे वहाँ पे एंड एज ए वाइस चांसलर कानपुर यूनिवर्सिटी में काम किए थे. एज ए इंजीनियरिंग प्रोफेसर IMS BH में काम किए थे एंड मेनी कॉन्ट्रीब्यूशंस आयुर्वेदा. अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलके बहुत सारे कोलैबोरेटिव वर्क कर रहे थे प्रोफेसर तोमर जी. ड्यूरिंग हिज टेन्योर प्रोफेसर तोमर जी ने 19 PhD थीसिस को गाइडेंस किया था और मोर देन 150 नेशनल और इंटरनेशनल पेपर्स, रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए थे. डायबिटीज इज वन ऑफ हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स. He has guided many people with his treatment and with his in the PhD, MD PhD theses. He has done more than 300 national and international seminars also. So अगर मैं तोमर जी के बारे में लेक्चर दें तो 1 घंटा तो मुझे इसी के लिए लग जाएगा. तो मैं now I will stop his introduction because there is a lot more, at least 3-4 pages of introduction is there. All his valuable contributions. अभी भी contribute कर रहे थे तोमर जी. So to cut it short, now I will request Professor Tomarji to give his lecture or webinar on diabetes and Ayurveda, diabetic management. Why we have selected diabetes is, जैसे आप जानते हैं आजकल कोरोना वायरस या वायरस इन्फेक्शंस का स्प्रेड बहुत ज्यादा हो रहा है और हर जगह हम लोग पेपर में पढ़ रहे थे, न्यूज में भी सुन रहे थे, डायबिटिक पीपल को और हार्ट पेशेंट्स को इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. तो ऐसी चीजों में डायबिटीज से कैसे रक्षण हमको लेना है, प्रिवेंटिव कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है और क्या क्या हम लोग मेडिसिन ले सकते हैं, क्या दिनचर्या करना है, क्या ऋतुचर्या पालन करना है, कैसे योग करना है, ये सभी हमको विस्तार से बता पाएंगे प्रोफेसर तोमर जी. सो नाउ ओवर टू प्रोफेसर तोमर जी फॉर ऑल हिज लेक्चर. तोमर जी फॉर ऑल टू यू सर. थैंक यू. थैंक यू. ओम श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदादि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपराम्. आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी और पीयूष जुनेजा जी का कि जिन्होंने आप सब मित्रों के साथ मुझे जुड़ने का अवसर दिया और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने का अवसर प्रदान किया. दुर्गा प्रसाद जी हमारे बड़े प्रिय हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं. तो एक थोड़ा मैं भूल सुधार कर लूं, मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में डीन रहा हूं, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन. आई वाज नॉट वाइस चांसलर.
और दूसरी बात, एक अपना एक्सपीरियंस। आज आप जिस पोजीशन में रह रहे हैं, अभी कल 2 दिन पहले 4 मई को CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर के माध्यम से एक वेबिनार हुआ इंटरनेशनल, जिसमें USA से थे, प्रोफेसर बाली थे आपके दिल्ली से, और KGMU से एक प्रोफेसर थे, साथ में आयुर्वेद साइड से मैं था। और टॉपिक था कि सर्टेन हेल्थ इश्यूज ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उठाया है डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी ने कि दी एग्जैक्ट प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी in the present scenario is to prevent ourselves not only from corona, from the common diseases which are you are already suffering from. आप जान रहे हैं कि भारतवर्ष डायबिटीज की राजधानी के रूप में लोग इसको जान रहे हैं। इट इज सपोज टू बी कैपिटल ऑफ डायबिटीज। इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप बड़े स्पष्ट रूप से देखिएगा कि अब आप सब आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं आप लोग, तो आप जानते हैं कि आयुर्वेद के संदर्भ में कि हमको ये गर्व होना चाहिए कि जिस विधा को आप पढ़ रहे हैं, जिस विधा को आपने पढ़ा है, वो विश्व की संपूर्ण विधाओं में प्राचीनतम है। बिकॉज यू नो द वेदास आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिटन टेस्टिमनी ऑफ नॉलेज, एंड आयुर्वेद इज सपोज टू बी उपवेद ऑफ अथर्ववेद। तो आप सोच लीजिए कि इतना प्राचीनतम ग्रंथ है, प्राचीनतम विधा है। और दूसरी बात, आयुर्वेद इज नॉट मियरली अ सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट, इट इज सपोज टू बी आइडियल वे ऑफ लाइफ। एज डॉक्टर दुर्गा प्रसाद हाईलाइटेड दिस थिंग, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, एवरीथिंग इज रिटन इन दिस वेरी टेक्स्ट। नॉट ओनली द सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आइडियल वे ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव इन द सोसाइटी, हाउ टू इंटरेक्ट विद द पेशेंट, हाउ टू इंटरेक्ट विद आवर पेरेंट्स, how to interact with our teachers, everything is written in such a scientific manner. The question is, why the world community is attracting towards this very system of medicine? This is the basic thing. Because of holistic approach. Dear friends, as you all are aware, the Ayurveda is the system of medicine which has got the holistic approach. Ayurveda believes शरीरेन्द्रिय सत्वात्मा संयोगो धारि जीवितम निश्चकश्चानुबद्धश्च पर्यायैरुच्यते. We are thinking not only about the body, we are thinking about the sharir, the body, senses, the psyche and the soul. इसलिए जो हम बात करते हैं वो हम होलिस्टिक बात करते हैं। इसलिए होलिस्टिक अप्रोच होने के कारण आयुर्वेद इज टू peculiar and the subject of attraction in the global community. दूसरी बात आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचनई ये तो संशोधनेर युक्ता तेज न तेषाम पुनरुद्भवा, ये तो संशोधनेर शुद्धा न तेषाम पुनरुद्भवा। ये चिकित्सा कैसी है? समूल चिकित्सा है। We are not simply pacifying the symptoms of the disease, we are curing the disease radically. This is the beauty of Ayurveda. और इसकी विलक्षणता क्या है ये आप पहले जान जाएं, ये आपका जानना बहुत जरूरी है कि आयुर्वेद हैज गॉट द इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। हम क्या कहते हैं कि जिसके बारे में आज वेस्टर्न सिस्टम कहना शुरू कर दिया, जीनोम थ्योरी। पहले आप क्या कहते थे कि एक ही औषधि मात्रा बदल करके विभिन्न रोगियों को आप दे सकते हैं, बट नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द जीनोम थ्योरी। चरक हैज क्लियरली मेंशन्ड योग मासाम तो योग विद्या देश कालोपपादितम पुरुषम बीच सगेयो विश्वतमा। You will have to decide the temperament and constitution of the individual, and according to the constitution of individual, you will have to decide the medication. ये हर व्यक्ति को, हर रोगी को, एक ही रोग से सफरिंग करने वाले रोगियों को अलग अलग औषधियों का चयन, अलग अलग आपकी लाइफ स्टाइल आपको सजेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हम जो है हर व्यक्ति की इंडिविजुअल चिकित्सा करने के लिए आयुर्वेद बताता है। तो ये आयुर्वेद की एक विलक्षणता है जिसको आज जीनोम थ्योरी के नाम से वेस्टर्न मेडिसिन वाले कहना प्रारंभ कर दिए हैं। आपके सामने मैं रहना चाहूंगा कि आप सब चिकित्सक हैं, और चिकित्सकों को एक बात विशेष रूप से मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि आपको अपनी सीमा रेखाएं समझना चाहिए। Once you are treating a patient, you are not treating the patient as an experimental animal. That's why you must know your limitations. चरक जैसा मनीषी कहता है
न च सर्वे व्याधयः भवन्ति उपायसाध्या न च सर्वे उपायसाध्यानां व्याधीनां अनुपाय निसिद्धिरस्ति परीक्षकारिणो हि कुशला भवन्ति. All the diseases are not curable. Even the curable disorders cannot be cured without proper investigation and approach. So this is the version of Charak. एक बार मुझे अमेरिका में मेरा व्याख्यान था, तो मेरा परिचय दिया गया एक विद्वान के द्वारा. I will not disclose the name of the person. He introduced me. Now I am calling a professor from Banaras Hindu University. He can cure diabetes within 3 doses. He can cure cancer within 3 doses. You just imagine. He was telling this thing sarcastically because he was from the Western medicine. मैंने कहा I will reply when I will be on podium. When I start my talk, मैंने उनको बता दिया कि ऐसा नहीं है जिन मधुमेह डायबिटीज की आप बात कहते हैं कि डायबिटीज को हम क्योर कर सकते हैं. ये केवल थैला छाप फिजिशियन कह सकता है. An institutional physician can never say such type of the words. Because Charak himself says, Sadhya kapotha anna pittalasar, Sadhya kapotha das pittalasar, yapya anna sadhya pavana satoska. 4 जो वातज प्रमेय हैं वो आपके असाध्य होते हैं. चिकित्सा के समय भी चरक कहता है, या बात मेहान प्रतिपूर्व मुक्ता बातोल बना नाम बेटा क्रिया सा बातें सुमेहे स्वत करसता नाम कुप्पित असाध्या प्रतिनाशिंता. ये फ्रेंड्स असाध्य कहा गया है. या प्योर अनुपक्रम 2 भेद होते हैं जिसके. तो आपको अगर चिकित्सा करना है तो आपको इन मूलभूत चीजों को जानना चाहिए, तभी आप इस संबंध में बात कर सकते हैं. एज फार एज द लिमिटेशंस of Western medicine is concerned, no doubt, Western medicine is potent enough to control the emergency management, emergency problems, and acute disorders. While we are talking about the lifestyle-related diseases or chronic or intractable diseases, they can simply pacify the symptoms of the disease. They have no cure at all. They already told this thing. The availability of cure for chronic and intractable diseases or lifestyle related diseases, we have no cure at all. आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में इसके लिए कहा जाता है, याद रखिए कि हम लोगों के पास 3, we are lacking 3 A's. First one is the antibiotics, second is analgesic, और third one is anesthesia. ये तीनों हमारे पास थी, संहिता काल में सब चीजें थी. उनका हम पुनर्जागरण करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आयुष के जो सचिव हैं, हमारे वैद्य राजेश कोटेचा जी. उन्होंने प्रयास करके सबसे पहले एक चीज पर वार किया. पहला जो आयुर्वेद डे मनाया गया, पेन मैनेजमेंट इन आयुर्वेद. वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एनाल्जेसिक्स इन आयुर्वेद, जिसमें काफी हद तक हम लोगों के पास सफल चिकित्सा मिल रही है और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. जहां तक एंटीबायोटिक्स का प्रश्न होता है तो साथियों मैं बार बार इस बात को जोड़ देके कहना चाहूंगा कि अवर मनीषीज आर क्वाइट अवेयर रिगार्डिंग द this infectious diseases. In spite of that, they have not focused on the antibiotics. Why? In Susud Nidan Sthan, they have clearly mentioned prasangat ka sansparsa nyaswasa say bhojanat sasayya sanashchaipe pastamalya anudepanat kushtam jwaram cha sosascha netra vishan devacha औपसर्गिक रोगाश्चय संक्रामक निरंतरम. इन रोगों को एक रोगी से दूसरे रोगी में फैलने के जिन माध्यमों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने कर दिया है, we cannot add a single thing on this description. चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे कोई अन्य इन्फेक्शियस डिसीजेस हो. लेकिन इतना सब जानने के बाद भी उन्होंने कभी इसको हाईलाइट नहीं किया कि हमको एंटीबायोटिक से बात करना, बिकॉज दे रिलाई ऑन द क्षेत्रवाद, अनलाइक द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन हु रिलाई ऑन बीजवाद. ध्रुव चतुर्णाम सानिध्याद गर्भसाद्वत पूर्व का ऋतु क्षेत्राम बीजानाम सामग्र्यादं कुर्वयत्. उनका मानना था कि in spite of entry of sufficient pathogens in the body, till your immune system or resistance is proper, there will be no disease at all. It is proved. In such scenario, even in the COVID-19 pandemic, what is our intention? What is our objective? Advisory has already passed from Ministry of Ayush, Government of India, that we have to boost up the immune system or resistance of the individual, either the corona warriors or the persons who are in the lockdown condition in the homes, or even the patient who are suffering from corona. This is the basic logic. If you boost up the immune system, in spite of entry of coronavirus, there will be no multiplication. Automatically disease will be stopped.
डियर फ्रेंड्स, 3 तरह के जो बल आयुर्वेद में बताए गए हैं, सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल. So we are talking about the युक्तिकृत बल. Or we have got number of the medications. It is proved. आपकी डाबर की गिलोय घनवटी इस समय जो आप यूज कर रहे हैं, रतनप्राश जो आप यूज कर रहे हैं, अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा लेह, these drugs are supposed to be wonderful drugs. They can boost up the immune system or resistance of the body, and they are very, very essential and very useful in the present scenario. Now the question is, the patient suffering from diabetes, it's not possible to give them Chyawanprash, Avaleh, Ashwagandha leh, because sugar base is there. So we can use sugar free Chyawanprash and all other drugs which are recommended. तो ये हमारी मर्यादाएं हैं, सीमा रेखाएं हैं. आयुर्वेद की सीमा रेखाएं क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं? Because we are preparing the medicine, most of the medicines from the herbal drugs. These drugs are having the similar biomorphic constitution of human being. That's why they can easily digest it, absorb and assimilate it in the body without creating any side effects. जब हम minerals की बात करते हैं, भस्मों की बात करते हैं, तो they are properly processed. भावना दी जाती है. That's why the toxicity and inertia of these drugs will be removed by the virtue of bhavana. So this is the basic important thing. और तीसरी आयुर्वेद में बात क्या होती है? It is easy to procure and cheaper than the Western system of medicine. My dear friends, now we are focusing on this thing. Now the World Health Organization has already shifted the priority from the contagious or infectious diseases to the lifestyle related diseases, or you can say chronic or intractable diseases. You can say NCDs, non-communicable diseases. Diabetes is supposed to be one of the important diseases among them. Second important thing, what I want to narrate over here, it is the version of WHO. More than 75% lifestyle related diseases can be prevented, as discussed by Dr. Durga Prasad. Dincharya, lifestyle. What should be the lifestyle? Dear friends, Ayurveda has narrated a wonderful lifestyle in the form of the Swastamrita. You know, Dincharya, Ratricharya, Ritucharya, Sadbrit, Achar Rasayan, concept of the Dharani and Adharani way. These things are written in Ayurvedic classics in such a scientific manner. If you follow these things, you will keep yourselves healthy. आज इस कोविड की एडवाइजरी में आपने देखा कि अणु तेल का नश्य, ये हमारे बताया गया है, नश्य आप करें. गंडूस धारण करना, तिल तेल, घृत, इसका आप गंडूस धारण करें. इससे क्या होगा? The mucous membrane of the respiratory tract will be quite strong. It will not permit the entry of the coronavirus. And due to the constitution of the fat, it will dissolve the layer of the coronavirus and destroy it. तो आपको ये सारी चीजें जो आयुर्वेद में बताई गई हैं, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए. अब आपको देखना यह है कि why Ayurveda? When we are talking about the diabetes, what is the contribution of the Ayurveda? Now I am telling very important story. Dear friends, it is the narration of World Health Organization. In spite of sufficient glucose control with insulin and other oral hypoglycemic drugs, its complications are inevitable. All the body parts, right from brain to kidney, every part of the body will be affected by the complications of diabetes later or sooner. Then the question is, what we are doing in the present scenario, the Western medicine is totally relying on reducing blood glucose level with the help of the newer agents, chlorpropamide, tolbutamide, phenyl, or sulfonylurea group. So many groups are there, so many new drugs are there. Number of the type of the insulins are there. They are simply reducing the quantum of the blood sugar. It is the saying of physicians. In a conference, I was participating in an international convention. It was narrated by a physician
to reduce the blood glucose level is winning a war, winning a battle, losing a war. एक छोटी लड़ाई आप जीत लेंगे ब्लड शुगर को घटा करके, और एक युद्ध आप हार जाएंगे. वो युद्ध क्या है? To protect the vital parts, to maintain the integrity of the vital parts which are prone for the complications. As you all are aware that diabetic retinopathy, nephropathy, neuropathy, myopathy, cardiopathy, every part is affected by the complications of the diabetes. The question is, what are those drugs which can maintain the integrity of the vital parts along with the reduction of blood glucose level? This is the basic question. Keeping this very objective in the mind, our attention goes towards the holistic approach of Ayurvedic system of medicine that can definitely contribute something very special in this perspective. Dear friends, जिस आयुर्वेद विधा को आपने पढ़ा है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1st century AD में एरेटियस नाम का एक फिजिशियन था, ग्रीक फिजिशियन, रोमन फिजिशियन, who has given the name diabetes for the first time. This name was basically developed by the word diabetes. This means siphoning. Siphoning, एक फ्लूइड को बॉडी से साइफन की तरह बाहर निकालना. जब आयुर्वेद में जाते हैं तो प्रमेय के लिए क्या लिखा है? प्रकर्षेण प्रभूतम प्रचुरम बारम बारम बारमेति सप्रमेय. पहले से हमारे यहाँ बताया गया है कि अधिक मात्रा में मूत्र का प्रत्याग करना, बार बार मूत्र का त्याग करवाना, ये साइफनिंग हो रही है. टू फ्लो थ्रू, साइफनिंग, यही आयुर्वेद की परिभाषा है. दूसरी बात, हिस्टोरिकली आप देखिए 1689 में मॉर्डन नाम का एक फिजिशियन था. उस फिजिशियन ने पहली बार ये कहा कि हेरिडिटरी होती है. और आयुर्वेद में क्या बताया गया? प्रेमेहो अनुसंगिना नाम, इट हैज बीन नरेटेड बाय चरक. पहले से ही बता दिया गया कि अनुसंगी ये हमारा जो हेरिडिटरी डिसीज है. ये आयुर्वेद की प्रामाणिकता है. इसमें आयुर्वेद के बारे में बातें कही गई हैं. जब हम देखते हैं वैदिक कालीन वाङ्मय में ऋग्वेद और अथर्ववेद में मेहनम शब्द का उल्लेख किया गया है. और पेपल्याद संहिता एक ऐसी है वैदिक कालीन जिसमें पहली बार प्रमेय का नाम लिया गया. प्रमेयण सताविदुर उभयोर मेहनस्य च. उसके बाद गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण में प्रमेय का डिस्क्रिप्शन किया गया. 20 प्रमेय के भेद बताए गए. उन 20 प्रमेय के भेदों के बाद में तब आप देखते हैं कि मधुमेह जो है एक 72 प्रमेय का भेद बताया गया है. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये जानना चाहिए कि डायबिटीज के संदर्भ में जो 3 चीजें बताई गई आपके सामने, मैं तो ये कहता हूं, मेरा ये मानना है, मैंने जो किताब लिखी है डायबिटीज पे, मेरी किताब का पहला शब्द यही है, मधुमेह अभिशाप नहीं वरदान है. डायबिटीज इज नॉट ए कर्स, इट इज अ बून टू द लाइफ. द मोमेंट यू रियलाइज यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, यू कैन कंट्रोल योर डाइट एंड डीड्स अकॉर्डिंगली. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपको सिग्नल मिल गया, आप अपने दिनचर्या को कंट्रोल कर लेंगे, रातचर्या को कंट्रोल कर लेंगे, डाइट को कंट्रोल कर लेंगे, निश्चित रूप से अपने आप को आप बचा सकते हैं. ये हमारा एक मानना है. दूसरी बात, आपको देखेंगे आज मॉडर्न परिवेश में, बिकॉज यू विल हैव टू प्रूव द एफिकेसी ऑफ दिस वेरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑन करंट साइंटिफिक पैरामीटर्स. इफ यू वांट टू कन्विंस द ग्लोबल कम्युनिटी, नाउ द आयुर्वेद इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडियंस ओनली. It is not limited between the 4 walls of the country. Now it has become the global property. So you will have to convince the world community with the help of the current scientific parameters. Dear friends, diabetes has been classified in 3 broad groups. First one is the metabolic syndrome. Second one is the pre-diabetes. And third one is the diabetes. While we are talking about the metabolic syndrome, you just imagine, the blood sugar level is absolutely normal. Patient is having central obesity. पेट आपका बढ़ा हुआ होगा. Dyslipidemia, your triglycerides LDL may be raised, HDL might be reduced, and third important thing, your blood pressure might be slightly raised, but your blood sugar level is absolutely normal. Second condition, where the blood sugar level ranges between the range 126 के बिलो ही रहेगी, वो प्री डायबिटीज कंडीशंस होती हैं.
उसके बाद डायबिटीज आती है when it goes above 126, you know. So this is very important thing. Now the question is why I am highlighting this important thing over here, dear friends. जब हम निदान की बात करते हैं आयुर्वेद में, तो इतनी उत्कृष्ट चिकित्सा विधा, इतना बड़ा विज्ञान हमारे महर्षियों ने क्या बताया? आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्रामोदकानु प्रसाम पयांसी नवान्न पानम गुड़ व्यकृतम च प्रमेय हेतु कपकृत सर्वम. Sedentary lifestyle is supposed to be the basic cause. This is the important thing. What has been highlighted by the Western physicians? You will have to adopt the active lifestyle. Reduce your calorie. You burn your calories. Asya sukham. Excessive consumption of the carbohydrate. Everything is written in such a scientific manner that can be very, very important. Then we come to the पूर्व रूप. पूर्व रूप की जब आप बात करते हैं, दंतादीनाम बलाढ्यत्वम प्रायुरूपम पाणिपादयो दाहश्चिक्कणतादेहे तत् स्वादास्यम जायते. नॉट ओनली दिस, मूत्रे विधावन्ति पिपीलिकाश्च. रोगी के मूत्र में चींटियां लगती हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं कि रिसर्च मेरा एक जुनून रहा है और प्रारंभ से ही मैं ये काम कर रहा हूं. 40 वर्षों से मैं लगा हुआ हूं. मैंने ये महसूस किया, even before the metabolic syndrome state, where if you examine the patient for glycosuria, no glycosuria is there. Benedict solution and ferric solution does not allow to give the positive results. But still patient is saying, मूत्रे विधावन्ति पिपीलिकाश्च. चींटियां हमारे पेशाब में लगती हैं. I followed those patients. Near about 300 patients की मैंने स्टडी किया और मैंने देखा कि 1 से 3 वर्षों के बीच में more than 80% पेशेंट्स डायबिटिक हो गए. What it shows कि आयुर्वेद की दृष्टिकोण से जो पूर्व रूप बताए गए हैं, यदि पूर्व रूपावस्था में आपने प्रयास कर लिया और आपने डाइट का कंट्रोल कर लिया और चीजों चिकित्सा में आपने कर दिया, तो यू कैन प्रिवेंट द पेशेंट ऑन दैट पार्टिकुलर स्टेज. देयर विल बी नो डायबिटीज एट ऑल. नॉट ओनली दिस, you can keep a patient's life and protect him from the dreaded complication of this disease. इसलिए हमको जानना चाहिए कि आयुर्वेद के महर्षियों ने जो चीजें कही हैं उनको हम वैज्ञानिक तरीके से कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें. अब आप देखते हैं कि बचाव हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहले बचाव करने की जरूरत है. कैसे हम बचाव करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, जब लक्षणों की बात आती है, हमारे महर्षियों तो कह दिया प्रागरूपम पाणिपादयोता. जिस डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात मॉडर्न साइंस कहता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी इज द कॉम्प्लिकेशन, it has been mentioned in the Ayurvedic classics during the predisposition phase, during the पूर्व अवस्था of the disease. जहां तक हम रोग की बात करते हैं तो रोग के लक्षणों में क्या कहा है? सामान्य लक्षणम तेषाम प्रभूता विलमूत्रता. प्रभूत मूत्रता और अविल मूत्रता, polyuria and turbidity in the urine. Not only this, our Manishis are quite aware regarding the presence of hyperglycemia in the form of madhuryach tanurata. संपूर्ण शरीर में मधुरता व्याप्त हो जाती है. This condition is called as hyperglycemia in the modern perspective. Not only this, they have other again mentioned. प्रायः मधुमेहति, मधुमेह का रोगी प्रायः मधु के समान मूत्र का त्याग करेगा. What do you mean by the मधु के समान? Sweet urine, presence of carbohydrate, presence of sugar in the urine. It has been discussed by the Ayurvedic Manishis during the symptomatology of this very disease. And apart from this, now we are talking about the, I will not waste much more time on the preclinical conditions. Now I am talking about the clinical conditions. How to manage such type of the disease, dear friends. Diabetes is also supposed to be a chronic disease. It has been presumed by the Western physicians that Ayurveda can contribute a lot in the management of the chronic and intractable diseases. Why it is so? Because the chronicity of the disease is basically due to immunopathology.
This immunopathology is basically developed due to two factors. Number one, on one hand, there will be membrane pathology. You can say Srotorodh on one hand and dislodged immunity on other. Why Ayurveda can contribute a lot in chronic diseases? Because we have got the complete therapy of such type of the patient by the virtue of we are removing membrane pathology by the Panchkarma Chikitsa, we can say by the Shodhan Chikitsa or the biopurification. On one hand, and boosting up the immune system with the help of the Rasayan Chikitsa along with the systemic medicine of the disease concern. That's why we are correcting the dislodged immunity of the patient. Here we are removing the membrane pathology and boosting up the immune system with the help of the Rasayan drugs. That's why Ayurvedic medicines, Ayurvedic Chikitsa is basically very, very important, very, very effective in the chronic diseases. As you are aware, रोगी में मधुमेह के में आप चिकित्सा में शिलाजीत का प्रयोग करते हैं. पिप्पली क्षीरपाक आप राजक्षमा के रोगियों में देते हैं, पिप्पली रसायन. हियर शिलाजीत इज रसायन. आम बात के रोगी में आप गुग्गुलू देते हैं, गुग्गुलू इज सपोज्ड टू बी रसायन. तो जितनी भी क्रोनिक डिसीजेज हैं, सारी क्रोनिक डिसीजेज में आप रसायन चिकित्सा जरूर देते हैं, साथ में शोधन करने के लिए कहते हैं, कोष्ठ की शुद्धि करना चाहिए. आयुर्वेद में मूलतः जब डिस्क्रिप्शन किया गया तो आपके सामने कहा गया कि स्थूल प्रमेही बलवान एक कृषस तथैकया परदुर्बलस्य संबृंगणम तस्य कृषस्य कार्यम संशोधनम दोष बलादिकस्य. डियर फ्रेंड्स, छोटे से सूत्र रूप में हमारे महर्षियों ने डायबिटीज के दो मूल भेद जो बताए गए हैं, NIDDM एंड IDDM, दोनों की चिकित्सा के संदर्भ में आपके सामने उपदेश किया है. उसको जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी ये वैज्ञानिक दृष्टि परम तत्व को लिए हुए है और बहुत ही ज्यादा लाभकारी है. अब हम देखते हैं कि हमारे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जब हम जानते हैं कि हम किस प्रकार से इन रोगियों की चिकित्सा करें, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो देखिए आपके सामने प्रश्न आता है. तो वेस्टर्न फिजिशियन, आई एम जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल कन्वेंशंस वेयर आई एम कन्फ्रंटिंग so many Western physicians who are quoting this thing. My dear friend Dr. Tomar, you are telling the Ayurveda can contribute a lot, even in the insulin-dependent diabetes mellitus. What can be done when the patient is lacking completely absence of insulin? Exogenous insulin is mandatory. How Ayurveda can contribute in such type of the cases? My answer is, Ayurveda is equally effective and has got the equal role in the management of the type 1 diabetes, that is supposed to be insulin dependent diabetes mellitus. How and why? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा लॉजिक क्या है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के बाद they have got the effective measures, but to maintain the integrity of vital parts, because the type 1 diabetes is very prone for the complications. तो हमको क्या करना है कि we are prescribing बसंत कुसुमाकर रस. You know, बसंत कुसुमाकर रस एक शस्त्र है आपके पास, उस शस्त्र का आप प्रयोग करें. मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर दुर्गा प्रसाद को कि मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत बार इनसे कहा कि आपका 10 गोली का पैकिंग आता है, हम पेशेंट को देते हैं तो 10 दिन खाने के बाद में किसी पेशेंट को कोई लाभ नहीं मिलेगा. इट्स अ लॉन्ग टर्म यूज. मिनिमम 15 दिन पेशेंट खाएगा, एक गोली सवेरे एक गोली शाम को. 15 days के बाद patient will automatically comes to you and say that I would like to consume this drug more and more, because after 15 days definitely there will be some improvement in the patient's condition. One thing is patient's well-being, feeling of well-being, that is more important. Exhausted senses, patient थक जाता है और ये बसंत कुसुमाकर खाने के बाद में patient feel करेगा कि my immunity, my the stamina, my vigor is definitely improving. So dear friends, so we have got the important drugs like Nisha Amal Ki Yog and Basant Kusumakar Ras. Chandra Prabha Bhatti. These drugs are supposed to be quite effective
in such type of the conditions they can be given. I have got the experience. कभी बाद में एक आध बार चर्चा करेंगे केस रिपोर्ट के बारे में, जो कैलिफोर्निया की एक पेशेंट को, जिसको कि डबल इंसुलिन शुरू हो गया था 3 साल की बच्ची को, उसको इंसुलिन की डोज कम करते करते विड्रॉ कर लिया गया, ओरल ड्रग पे आ गई और पेशेंट नाउ इज कंज्यूमिंग बसंत कुसुमा का रस कॉन्स्टेंटली। अब एक प्रश्न होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि बसंत कुसुमा का कितने दिन तक खाना चाहिए? जी, आप ये प्रश्न आएगा, मैं जवाब दूंगा। आगे हम चर्चा करना चाहेंगे कि बसंत कुसुमा का रस के साथ साथ में आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करें, कोष्ठ का विशेष ध्यान रखें। हमेशा याद रखिए, जब किसी रोगी की परीक्षा आप करें तो परीक्षा करते समय आप जो नाड़ी की परीक्षा करते हैं, तो नाड़ी की परीक्षा में 2 चीजें विशेष ध्यान से देखना चाहिए। वी आर एग्जामिनिंग रिमाइंडर हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, अवशिष्ट स्वास्थ्य, so that we can contribute something to maintain the level of this health in the individual. रोगी के रोग को न देख करके हम उसके अवशिष्ट स्वास्थ्य को देखते हैं, so that we can boost up the health status of the individual with the help of the Ayurvedic drugs. हमारा सिद्धांत ही यही है। तो वो कब तक हम कर सकते हैं? उसके लिए हमको क्या देखना पड़ता है? कोष्ठ और अग्नि। किस तरह का कोष्ठ है रोगी का और अग्नि का स्टेटस क्या है? अग्नि का स्टेटस हम कैसे जानेंगे? अव्यवर्ण शक्ति और जरण शक्ति। भूख लगती है और मोशन कैसा होता है? 2 चीजें हर पेशेंट को पूछना चाहिए। इनका हमें विशेष ध्यान देना होगा, इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा रोगी को। दूसरी बात, अब हम देखते हैं कि एवरी 3rd पर्सन इन इंडिया इज फिजिशियन। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको पूछ दिया किसी ने कि आपने अगर नाश्ता करने के पहले अपने डिब्बा खोला और दवा निकाली, तो आपसे पूछेंगे क्या आपको शुगर है? अरे आप बेकार परेशान होते हैं, 5 तुलसी के पत्ते, 5 मेथी का दाना, 4 सदाबहार के पत्ते, ये आप खाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। द क्वेश्चन इज, इतना विशाल भंडार आयुर्वेद में एंटी डायबिटिक ड्रग्स का है, इसकी वजह से हर आदमी इसके बारे में जानता है, लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द ड्रग टू बी कंज्यूम्ड and what is the proper time of the drug administration. That is very important. कितनी मात्रा में औषधि लें और किस समय लें, ये ज्यादा जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कोटिंग दिस थिंग, मेथी इज अ वेरी कॉमन ड्रग। पेशेंट भी आपको पूछते होंगे, साहब मेथी में शाम को भिगा देता हूं, ले लेता हूं। मेथी क्या करता है? मेथी डिलेज एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन गट। दैट्स व्हाई इट शुड बी टेकन मिनिमम हाफ एन आवर बिफोर मील, so that there will be coating and it restricts the absorption of the excessive calories. तो मेथी को उस समय प्रयोग करें। इसी प्रकार से और द्रव्य हैं, उन द्रव्यों की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हमें जानना भी चाहिए। बिकॉज some of the herbal drugs, they are typically meant to stimulate the beta cells of Langerhans of pancreas to secrete more and more insulin. Certain other drugs are anxiolytic like Stresscom. It has got direct role. If you cut down the anxiety of the patient, stress of the patient, automatically the level of the glucagon will be raised and level of the decreased and insulin level will be raised. This is very important thing. Certain drugs are specifically effective to control the production of the antibodies. In some patients, what we are doing when we are analyzing, patient is having hyperinsulinemia, but ineffectivity of the insulin is there. In spite of having sufficient quantum of the insulin, patient is hyperglycemic because there is presence of these certain antibodies which are binding the molecule of insulin and not allow the insulin to go at the target level. That's why ऐसे patients में हमें क्या देना है? We have to restrict the production of antibodies like जामुन का बीज, जम्बू बीज. These drugs are supposed to be mamajak. These drugs are specifically effective to control the production of the antibodies. Thereby they are affecting, they are basically increasing the effectivity of the insulin. Then they are working. And third important thing is certain drugs are helpful. They are particularly doing the increasing the peripheral utilization of the glucose. जैसे गुड़मार, चिरायता, कुटकी, ये सारे द्रव्य हैं जो यहाँ पर काम करते हैं. Anyway,
इसके ऊपर जाना है और हमारे पास औषधियों का भंडार है. We can go through the number of the drugs are there, like methi, करेला. Now I am talking about the करेला. सब्जियों में आप देखते हैं, मैं तो अपने पेशेंट को रिकमेंड करता हूं करेले का सलाद खाइए. तो so many patients they are telling me कि अब तो हम खाने लगे, हमें आदत हो गई, मैं करेला का सलाद खाता हूं. करेले की सब्जी बना के खाएंगे तो वो आपको प्रभाव नहीं मिलेगा. इसके अंदर एक मॉलिक्यूल पाया जाता है, इट मिमिक टू द इंसुलिन मॉलिक्यूल, प्लांट इंसुलिन. तो करेला को खाएं, या तो रस निकाल के पिए, या करेला को आप काट करके ताजा खाएं. ज्यादा उबाल के खाएं तो लाभ आपको नहीं मिलेगा. उसी प्रकार से कुंदरू एक सब्जी आती है, कुंदरू, जिसको मंदबुद्धि भी कहते हैं, लोग मंदबुद्धि करता है. तो ये बहुत ही इफेक्टिव है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए. कुंदरू, मेथी, परवल, सहजन, ये 4 चीजें जो है विशेष रूप से डायबिटीज के पेशेंट को खाना चाहिए. और हल्दी का प्रयोग, हल्दी is supposed to be very important drug even in the corona pandemic. Golden milk is recommended by the Ayush Ministry. तो हल्दी को दूध में पका करके आप प्रयोग करें, ये बहुत ही लाभकारी होती है. तुलसी का आप प्रयोग करें, तुलसी लाभकारी होती है. गुड़मार, विजयसार का गिलास बनवाएं रोगी से और उसमें पानी भर के रखें, सवेरे पिलाएं. विजयसार के ब्लॉक्स आते हैं, उनको भी आप पानी में डाल के रख दें और 7 दिन तक उसको ऐसे धीरे धीरे यूज करें. 7 दिन के बाद उसको दोबारा छील दें, फिर आप यूज करें. तो विजयसार इज वेरी इफेक्टिव. और काला जीरा और चंद्रसूर, इस पर भी बहुत काम हुआ है हिंदू यूनिवर्सिटी में. गिलोय, सदाबहार, मामजक, बिल्वपत्र, सो मेनी ड्रग्स आर देयर, दे कैन बी यूज्ड. और आपको बनी हुई औषधियां देना है तो डाबर की अभी एक ग्लाइकोडेव जो मार्केट में आया है, काफी वर्क मैं उस पर कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं. लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपका फोकस मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए. केवल आप ब्लड शुगर को रिड्यूस करने की बात ना सोचें, वाइटल पार्ट्स की इंटीग्रिटी मेंटेन करने की बात भी आप करें तो ये लाभकारी होगा. दूसरी बात, बनी बनाई औषधियों में मैंने आपको बताया था कि डाबर ने बहुत अच्छा काम किया है कि बसंत कुसुमा का रस जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक बसंत मेह रस निकाला है, वो भी अच्छा काम करता है. शिलाजीत का कैप्सूल भी डाबर का आता है. शिवा गुटिका एक बहुत अच्छी ड्रग है. Chandraprabha Bhatti. Basically, now the thing is, what is the objective of Ayurveda? इसमें आप ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट, हमारे यहाँ क्या कहा गया है? जब मैंने कहा कि ये असाध्य रोग है तो सुश्रुत में लिखा गया हो एवं मधुमेह चिकित्सायाम व्याख्यास्याम विषग्भ्य परिवर्जितम. Now I am expounding the management of those diabetics which are refractory from all medical treatment. You just imagine. वहां किसका उल्लेख किया गया मूल रूप से? शिलाजीत का. शिला धातु is supposed to be wonderful drug. Or the maintaining the integrity of the vital parts on one hand and reducing the blood glucose level on the other. Then we are talking about the basic hypothesis given by the Ayurvedic Manishis कि हाथों में भिक्षा का पात्र लेके जो 100 योजन नंगे पैर चलता है और भिक्षा में मांगते हुए भिक्षा पात्र हाथ में लेकर के, तो वो उसका डायबिटीज क्योर हो जाता है. हमको बहुत उपहास करता था, मैं बहुत हंसी आती थी. लेकिन जब मैंने महसूस किया कि हमारे महर्षियों ने इस छोटी सी चीज के साथ कितने बड़े सिद्धांत में को पिरो दिया, इससे हट करके हम कोई चीज जोड़ भी नहीं सकते. पहला काम उन्होंने कहा भिक्षा का पात्र, मीन्स यू हैव टू कट डाउन योर ईगो और स्ट्रेस. जब आपने अहंकार शून्य हो गए, भिक्षा का पात्र हाथ लेना माने अहंकार शून्य होना, तो आपने ईगो को कट किया और स्ट्रेस को आपने ऑटोमेटिकली कट डाउन कर दिया. तो पहला काम स्ट्रेस को कट डाउन करना. दूसरा, रूखा सूखा मांगते हुए, लो कैलोरी डाइट. तीसरा, 100 योजन 400 कोस मींस 1200 किलोमीटर. 1200 किलोमीटर का टारगेट आपके सामने होगा तो मिनिमम आप 20 मिनट पर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर डेली टहलेंगे. अगर इतना आप टहलते हैं तो यही सिद्धांत है. डाइट कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज, साथ साथ में डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी ने योगा की चर्चा की. तो डियर फ्रेंड्स, इस पेंडेमिक के समय मैं लॉकडाउन में रह रहे लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप आसन में विशेष रूप से प्राणायाम में अनुलोम विलोम करें और नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करें. ये सदाबहार प्राणायाम है, इसमें 1:4:2 का रेशियो होता है, इनहेलेशन, रिटेंशन एंड एक्सहेलेशन का. इसको करने से आपकी वाइटल कैपेसिटी, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इंप्रूव होता है
और कोरोना से होने वाले लंग टिश्यू डैमेज को आप काफी हद तक रोक सकते हैं, आप उसको पोटेंसी दे सकते हैं लंग के टिश्यू को, बहुत इफेक्टिव है। तीसरी बात, और आसनों के साथ योग मुद्रा करें, और एक होता है जिसे कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन, जो कर सकते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन में क्या होता है, घुटने से पैंक्रियाटिक एरिया को कंप्रेस किया जाता है, so that the stimulation of the beta cells are there by the virtue of this thing there will be increase the quantum of the insulin in some patients। और इसके अलावा और आसन कौन सा आप सजेस्ट करते हैं, निस्पंद भाव एंड शवासन। निस्पंद भाव का तात्पर्य क्या है कि जब आप ऑफिस आवर्स में खाली होते हैं तो 5 मिनट आप सीधे किसी इजी चेयर पे बैठ जाइए, पैरों को बराबर सामने रख लीजिए, स्टूल या कुर्सी पर, बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ दीजिए। Try to minimize your anti-gravity force. You will see gradually control your respiration slowly and smoothly. Within 4 or 5 minutes, your body will be re-energized and you will feel quite comfortable. आपका नेपोलियन बोनापार्ट 24 घंटे युद्ध क्षेत्र में घोड़े पे बैठ के लड़ सकता था, क्योंकि घोड़े की पीठ पे बैठ करके ही वो निस्पंद भाव का अभ्यास भी करता था। It's supposed to be one of the wonderful thing। और इस निस्पंद भाव से क्या होता है, it controls the secretion of the catecholamines, which is supposed to be very very important in the case of the diabetes। catecholamine जितना बढ़ेगा स्ट्रेस से, उतना आपको डायबिटीज बढ़ेगी। दूसरा आसन क्या होता है, उसे कहते हैं शवासन। उसके लिए समय नहीं निकालना, शवासन सिद्ध करिए, रात को बिस्तर पर लेटते ही आप सो जाएंगे। कंसंट्रेट होइए, ऐसा महसूस करिए कि आपका बॉडी का सारा भार बिस्तर के ऊपर पड़ रहा है, हाथ पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एंटी ग्रेविटी फोर्स को आप मिनिमाइज करिए। ग्रेजुअली आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी एनर्जाइज हो रही है और आप ऑटोमेटिकली यू विल फॉल इनटू डीप स्लीप। 2 स्टेजेस होती हैं, NREM एंड REM। REM मींस रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। सोते हुए आदमी को जब इलेक्ट्रोओकुलोग्राम किया गया आंखों में लगा के, तो आपने देखा कि एक ग्राफ आया, इस तरह का ग्राफ आया, और इसको क्या कहते हैं, ड्रीमी स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, आपकी आंखें चलती रहती हैं। और दूसरी स्टेज क्या है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, दैट इज डीप स्लीप। उसका ग्राफ कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इट विल प्रोवोक NREM, दैट इज सपोज्ड टू बी वंडरफुल फॉर द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज। इसको आप प्रयोग करें तो लाभ मिलेगा। एक बात और अंत में बताऊंगा कि आयुर्वेद के चिकित्सक यदि किसी पेशेंट को डाइट के बारे में नहीं बताते, पर्चे पे लिखा होना चाहिए, बिकॉज द फिजिशियन ऑफ टुडे इज लिमिटेड बिटवीन द नाइफ एंड पिल। मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें जापान के फिजिशियन ने जो वर्ड कोट किए थे, जो मैं बोल रहा हूं कि आज का चिकित्सक गोली या चाकू के बीच में सीमित रह गया है। ये दवा खाइए, इस दवा से ठीक नहीं होता तो चाकू से सर्जरी करा लीजिए। आहार की हम बात ही नहीं करते, ये आयुर्वेद है, अद्रव्यभूत चिकित्सा। 8/9 भाग हमारे यहाँ अद्रव्यभूत है। दैव विपाश्रय, सत्वावजय, अद्रव्यभूत, दोनों की दोनों। युक्ति विपाशा चिकित्सा, आहार, औषधि और विहार। इसमें केवल औषधि एक पार्ट है, वो आहार और विहार 2 पार्ट हैं। केवल 8/9 भाग आपकी अद्रव्यभूत है, नॉन मेडिसिनल अप्रोच। इसका हम प्रयोग करें और लोगों को समझाएं, हम क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये बताना आवश्यक है। तो आप देखिए, यव प्रधानस्तु भवेत् प्रमेही, यव का सेवन करना चाहिए, जौ का सेवन करना चाहिए। यहां तक कहा गया कि गाय को जौ खिला करके जो गोबर के साथ जो निकलता है उसकी रोटी बनाएं। इट्स नॉट पॉसिबल। आई एम सेइंग जौ हैज गॉट द मिनिमम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। शुद्ध मधु जो बताते हैं हम लोग, छोटी मक्खी का शुद्ध मधु आप देखिए तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ मधु इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ एनी स्वीट। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया का मधु प्रयोज्य है, रुक्ष द्रव्य है, ले सकते हैं उसको। साथ में तो मैं रिकमेंड क्या करता हूं लोगों को कि 5 किलो गेहूं, 2 किलो चना, 2 किलो जौ और 1 किलो सोयाबीन, इसको मिला के आप डायबिटिक फ्लोर, मधुमेहियों के लिए आटा बनाइए और इसकी आप चपाती खाइए। आप 2 की जगह 3 चपाती भी खाएंगे, 4 खाएंगे, तब भी आपको उतनी कैलोरी मिलेगी जितनी 2 चपाती में मिलती है। तो एक आपको ये करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, बिना चला हुआ आटे को छाने ना। इससे क्या होगा कि फाइबर पहुंचेगा,
फाइबर से कोलन हेल्दी होगा। आपके डायबिटीज के पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन इज द बिगेस्ट हर्डल, तो रोगी को पेट साफ होता रहेगा, इस सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। दूसरी बात, सब्जी में मैंने आपको बता दिया, कुंदरू, परवल, करेला और मेथी, इन 4 सब्जियों का प्रयोग जरूर करें और इसका प्रयोग करने से रोगी को जरूर लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से आप बड़े कॉन्फिडेंट होकर के ये कह सकते हैं कि डायबिटीज के सभी प्रकार के रोगियों में आयुर्वेद चिकित्सा अत्यंत प्रभावी है और इस चिकित्सा का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज की कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर डायबिटिक्स हो, उनको आधुनिक औषधियों के साथ साथ में आयुर्वेद औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ में ग्रेजुअली जांच कराते कराते लाभ मिलता है, तो हमको धीरे धीरे अपनी डोज को, उनकी डोज कम करते हुए अपनी डोज बढ़ाना चाहिए। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आयुर्वेद दवाइयों पर रोगी को रखा जा सकता है और आप रोगी के लाइफ स्पान को बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर पीयूष को और डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी को, जिन्होंने आप सब लोगों के बीच में मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक क्वेश्चंस की लाइन लग गई है। मैंने बिल्कुल गिनने छोड़ बिल्कुल दिए थे, बिल्कुल 100 तक आई वाज काउंटिंग एंड मैंने गिनने छोड़ दिए थे। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट successful talk till now, thanks to Dr. Durga Prasad and the Dabur team for and मैंने पहली बार आपको इतनी डिटेल में सुना एंड आई एम फीलिंग वेरी लकी एंड प्लीज एंड एज ए क्लिनिशियन इतना ज्ञान आज आपकी टॉक से मिला है जो मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सर, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस हैं। वी विल ट्राई टू टेक एज मैक्सिमम एज वी कैन। एंड सबसे पहले आई थिंक काफी क्वेश्चंस का आंसर एक ही क्वेश्चन से निकल जाएगा एंड काफी डॉक्टर्स आर आस्किंग दिस, नेम ऑफ योर बुक एंड डिटेल्स ऑफ योर बुक ऑन डायबिटीज so that doctors can refer to that as well. ये मैं एक आपसे मैं दुर्गा प्रसाद जी को मैं बीच में निवेदन करना चाहूंगा कि आई हैव गॉट द लिमिटेड कॉपीज, आई विल सेंड ए कॉपी टू डॉक्टर दुर्गा प्रसाद और वो अपने यहाँ से इसको मेल करा के या प्रिंट करा के उसमें डाबर का नाम डाल के पीछे डाबर का अपना डाल करके आप सब लोगों को अपने डाबर के जो डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं सबको आप भिजवा दें। आई विल गिव यू द बुक, मधुमेह चिकित्सा समग्र दृष्टिकोण। आई हैव गॉट अ बुक दैट आई कैन गिव टू दी Dabur India Limited. Great, sir. Thank you so much for this. I think help and support. Piyush. Yes, sir. Again, thank you very much, Professor Tomarji. On behalf of Dabur and with respect to all the participating doctors, we assure you that we will reprint the book on Tomarji's name and we will give it to all the participants attending today's lecture on CME. This will be very kind of Tomarji to give that book. We will definitely take a reprint of that and we will give out to all the participating doctors. Okay, sir. Right, sir. Thank you so much. So, sir, let me start the questions. So, the first question is from Dr. Harikishan Gupta that if already someone is under a treatment from endocrinologist and ये question हमें काफी डॉक्टर से आया है कि already मेडिसिन चल रही हैं, एंडोक्राइन के साथ ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें आयुर्वेदा को कैसे इन्फ्यूज करें, कैसे एलोपैथिक मेडिसिन को रिड्यूस करें या पैरेलल चलाएं या क्या पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा सर, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए आपको वो बता दूं मैं आपको, ये मेरे पास मैंने बहुत पेशेंट्स का डाटा मेरे पास है और ये विशेष रूप से मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूं आपके क्लिनिशियंस के सामने कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए। और अगर पेशेंट इंसुलिन पे है, along with the insulin you start the patient with बसंत कुसुमाकर रस and ग्लाइकोडेप और ग्रेजुअली आप देखिए पीरियडिकली वीकली टाइम पे आप पेशेंट को जांच कराइए। वो मोस्ट ऑफ दोज डायबिटिक्स हु आर ऑलरेडी गेटिंग द मॉडर्न ट्रीटमेंट दे माइट बी हैविंग ग्लूकोमीटर विद देयर ओन, देन वो जांच कराए और 7 दिन के बाद में आप महसूस करेंगे कि आपका लेवल ग्रेजुअली कम होना शुरू होता है, तो आप धीरे धीरे उसकी इंसुलिन की जो है यूनिट्स है कम करना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे करके। ऐसे पेशेंट भी मैंने देखे हैं जिनको मुझे 1 साल तक वेट करना पड़ा, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य कहते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं कि आयुर्वेद की औषधियों से मैंने इंसुलिन से पेशेंट को अगर मुक्ति आपने दिला दी, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका है। वो इंसुलिन की जगह पे वो पेशेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, वो पेशेंट अपने आप से अब मत कहिए कि आप जो है अपने डॉक्टर को मत बताइए कि आयुर्वेद दवा ले रहे हैं, अपने मॉडर्न एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को अटेंड करिए और वो खुद कहेंगे आपका जांच का रिपोर्ट देख के कि हम इंसुलिन कम कर रहे हैं। दे विल डेफिनेटली विथड्रॉ द इंसुलिन आफ्टर सम टाइम
if you use the Ayurvedic drugs along with the allopathic treatment, whatever treatment patient is getting, तो पेशेंट को जरूर लाभ मिलेगा. दिस इज द प्रॉपर वे. ग्रेजुअली यू आप मैनेज करिए, जांच कराते जाइए, ग्रेजुअली दवाई उनके कम करते जाइए और अपनी दवा पे पेशेंट को रखिए. हमेशा याद रखिए कि कोष्ठ शुद्धि बहुत आवश्यक है. और साथ साथ में आपको बसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग करते समय कोई क्वेश्चन अगर पूछे या ना पूछे, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारे अक्सर लेक्चर में लोग पूछते हैं कि कितने दिन तक लगातार बसंत कुसुमाकर रस ले सकते हैं. ये कोई क्लासिकल बात नहीं बता रहा हूं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो 40 साल तक मैंने गेन किया है. बसंत कुसुमाकर रस को आप लगातार, एक पेशेंट मेरे पास आया, वो कहा कि मैंने जो है 10 साल से मैं लगातार बसंत कुसुमाकर रस ले रहा हूं. मैंने सबसे पहले जैसे ही सुना मैं परेशान हो गया. मैंने नेफ्रोटॉक्सिसिटी के लिए सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया सब करा दिया. आश्चर्य की बात है कि उस पेशेंट में कहीं कोई उसकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं मिली. लेकिन फिर भी precautionary, once you are using such type of the drugs, try to utilize these drugs in the interruptive manner. पहले 1-2 महीने लगातार आप दे सकते हैं. उसके बाद आप फैशन बनाइए कि 10 दिन आप विड्रॉ कर लेंगे, 20 दिन दवा देंगे. और दूसरा तरीका है कि बसंत कुसुमाकर रस फॉर 20 डेज और उसके बाद में फॉलोड बाई बसंत मेह रस फॉर नेक्स्ट 20 डेज. अगेन बसंत कुसुमाकर रस, बसंत मेह रस. दिस इज द प्रॉपर वे. क्योंकि बसंत कुसुमाकर रस को अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं, अगर नहीं बसंत मेह देना है तो 10 दिन आप विड्रॉ कर लें महीने में. दिस इज द प्रॉपर वे. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट सर, थैंक यू. सो इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ डॉक्टर्स का सर क्वेश्चन रहा है कि जैसे हमने वसंत कुसुमाकर और वसंत मेह का तो क्लैरिफिकेशन समझा, आपने ग्लाइकोडेब या कुछ और मेडिसिन की भी बात करी, तो आयुर्वेदा मैनेजमेंट में कैसे प्रोटोकॉल फॉलो करें, या किस एस्पेक्ट में उसमें हमें ग्लाइकोडेब ऐड करनी है या नहीं करनी, या किस एस्पेक्ट में आयुर्वेदा प्रोटोकॉल मैनेजमेंट बनाए पूरी मेडिसिन या ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये काफी डॉक्टर देखिए, राइट. देखिए ऐसा है कि इसमें आप ये मान लीजिए कि पहले आपको किसी हर रोगी को प्रातः काल सबसे पहले रोगी को हम क्या करते हैं कि निशा आमल की हो, नहीं कुछ ले सकता है तो 1 चम्मच हल्दी 4 चम्मच आंवले के रस में मिला के आप दीजिए. नंबर 1. नंबर 2, बसंत कुसुमाकर रस 1 गोली और 2 गोली ग्लाइकोडेब बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर, दैट इज 10 to 20 minutes बिफोर. और उसके बाद 2 टैबलेट्स आपने जो लिया है, मैं जो यूज करता हूं पार्टिकुलरली, एक हमारी प्रिबेक कंपनी है, उसका मैं डायबकल्प आई एम यूजिंग. डायबकल्प 2 गोली लंच के बाद, 2 डिनर के बाद, और सोते समय 1 चम्मच मधुरक्षक एक्टिव डाबर इंडिया. ये देने के बाद में पेशेंट को ग्रेजुअली यू विल फील कि पेशेंट को मोशन भी ठीक होना शुरू हो जाता है. जो आपका मधुरक्षक एक्टिव है उससे पेशेंट्स के कॉन्स्टिपेशन भी दूर होता है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. इसको आप इस तरह से प्रारंभ करें. दिस इज द प्रॉपर डोज शेड्यूल. राइट सर, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर मनोज मिश्रा. आज के परिप्रेक्ष्य में हमें किन किन कंपनीज की भस्म प्रयोग करनी चाहिए? देखिए, आई कैन नॉट क्रिटिसाइज एनी पर्टिकुलर सिस्टम, बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज, जब तक मैं कन्विंस्ड नहीं हूं, मैं कभी किसी औषधि को लेता नहीं हूं. डाबर इंडिया का मतलब ये नहीं है कि डाबर इंडिया का मैं टॉक दे रहा हूं तो डाबर इंडिया का मैं कोई वकालत करूंगा. मैंने डाबर इंडिया को इसलिए चुना कि मैंने अपनी संतुष्टि करने के लिए इनकी भस्मों की जांच कराई. आज इनको पता नहीं है, दुर्गा प्रसाद जी को भी पता नहीं होगा. मैंने अपने लेवल पर इसका एनालिसिस कराया और मैं ये संतुष्ट हुआ कि एक तो क्वांटम ऑफ द शुगर इज देयर, गोल्ड इज देयर. गोल्ड का प्रयोग ये सारे अपने प्रोडक्ट्स में करते हैं, जितना लिखते हैं उतना करते हैं, पहली बात. और दूसरी बात, प्रोसेसिंग मटेरियल एंड प्रोसेसिंग मेथड इज वंडरफुल. उसकी वजह से इन औषधियों को आंख बंद करके मैं यूज करता हूं, मैं कर सकता हूं. और जो है दूसरी औषधियां, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको मैं इस मंच से मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं बेसिकली मैं पर्चे में लिख देता हूं कि इसकी दवा का आप प्रयोग न करें. तो ये तो आप व्यक्तिगत रूप से मेरे टेलीफोन से बात करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा. लेकिन डाबर के बारे में आई एम फुली एश्योर, और मैं आपको एश्योर भी कर रहा हूं कि मेरी चिकित्सा में मेरे पर्चे आप देखेंगे, चाहे डॉक्टर दुर्गा प्रसाद हमको पहले ये तो हमारे साथ रहे हैं, ये डाबर में नहीं थे, उसके पहले भी मैं पर्चे पे लिखता था तो ब्रैकेट में लिख के भेजता था डाबर. कारण ये है कि जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक रोगी को आप दवा नहीं दे सकते. तो ट्राई टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस फॉर एनी
भस्म चिकित्सा जब भी आप करें तो हमेशा आप अपने आप को ध्यान रखें, और आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत सटीक है। आप मेरा नंबर दे दीजिए, लोग हमसे व्यक्तिगत बात कर सकते हैं, हम चर्चा कर लेंगे। राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर प्रेम प्रकाश व्यास, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर से। इनका क्वेश्चन है, काइंडली शेयर बेस्ट मैनेजमेंट फॉर जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस इन चिल्ड्रन। The important thing is I have got a case report. उनसे कहिएगा हमसे साझा करेंगे, हमारा मेल ले लेंगे, हम वो केस रिपोर्ट भी उनको भेजेंगे। राइट सर। जुवेनाइल डायबिटीज में बसंत कुसुमाकर का मैंने प्रयोग किया है, और बसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग 1/8 टैबलेट, 1 गोली के 8 गोली बनाया, 8 हिस्से बनाया, 1/8, और ये सुबह और शाम मैंने पेशेंट को दिया, और साथ साथ में आंवले का जूस और हल्दी का कैप्सूल मैंने यूज किया, स्नैक 30 जो आर्बरो फार्मास्यूटिकल आपकी बनाती है। ये 3 औषधियां केवल मैंने दी हैं, और साथ में हमने कहा कि जो आपके पीडियाट्रिशियंस हो वो आपको जो सजेस्ट कर रहे हो वो आप करिए, साथ में ये औषधियां लीजिए। आप इसका प्रयोग करके देखिए, रोगी को लाभ मिलेगा। Thank you, sir. Next question from Dr. Jaya Gupta, patient suffering from rheumatic heart disease and diabetes. So can these drugs be given to that patient as well? In the case of the rheumatic arthritis, rheumatic heart disease, you will have to control that condition. That is very important because rheumatic arthritis is there. बसंत कुसुमाकर रस का कोई हर्डल नहीं है. This बसंत कुसुमाकर रस can be given along with the आम्बातारी रस and Brahma Chintamani. Both drug can be given to the such type of the patients. It will be very effective. There will be no hurdle to use the anti-diabetics in the patient of rheumatic arthritis. Right, sir. Next question from Dr. Anupama. May I know if methi can be taken as churn or soaked? Which one is effective? चूर्ण और सोक्ड, जैसे भिगो के सर रात में मेथी दाना रिकमेंड करते हैं ना, तो चूर्ण का प्रयोग करें या मेथी दाना भिगो के प्रयोग करें? भिगो के अगर प्रयोग करते हैं that will be more effective. राइट सर. एंड एक क्वेश्चन पीयूष यहाँ पे एक मेरा भी एक्सपीरियंस है अभी उसको. हाँ, वीडियो नहीं आ रहा है सर आपका? सॉरी. राइट सर. पीयूष, यहाँ पे एक तोमर जी का एक्सपीरियंस मेरा भी एक छोटा सा सजेशन है मेथी के बारे में. मैंने भी बहुत सारे पेशेंट्स को ना मेथी का चूर्ण, मेथी पाउडर जो मिलता है हमको घर में, मेथी पाउडर को तक्र में डाल के मैं देता था पेशेंट्स को. मैं खाने के बाद तक्र में, खाना हो गया तो लंच के बाद, डिनर के बाद तक्र में मिला के, एक ग्लास तक्र में मिला के देने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मेथी चूर्ण को तक्र में मिलाने से. बटर मिल्क ना सर? करेक्ट. तो आप अपने डॉक्टर्स को बोल सकते हैं तक्र में इसका 1 चम्मच चूर्ण यूज करके दे सकते हैं. इट विल बी वेरी यूजफुल. राइट, दैट्स गुड. डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, एक्चुअली यू आर जस्ट लाइव, सो अभी कुछ एक क्वेश्चन था, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू टू ज्वाइन. Many doctors are asking already. Dr. Tomar has clarified. Still, from the perspective of Dabur, they want to clarify and have your submission as well. As we have seen, there are so many medicines available: Vasant Kusmakar, Vasant May, Glycodab, and all. So, Dabur का क्या perspective है इन अलग-अलग medicines को रखने का? And as a company, what is your take on this and your message to the clinicians and doctors on this? See, हमें जैसे तोमर जी ने बताया था, आयुर्वेद में 20 तरह का प्रमेय है. हर प्रमेय में लक्षण अलग अलग होते हैं, इसलिए. और जैसे तोमर जी ने बताया था, कॉस्ट को भी देखना पड़ेगा व्हाइल ट्रीटिंग द पेशेंट्स. जैसे बताया था, किसी एक बार क्वेरी भी आया था, वसंत कुसुमाकर बहुत कॉस्टली है, क्या करना चाहिए? तो हमने क्या किया था, वसंत कुसुमाकर फॉर्मूला के ही रखे, स्वर्ण को थोड़ा कम करके शिलाजित का मात्रा उसमें डाला. वसंत कुसुमाकर में शिलाजित नहीं होता, वसंत मेहरस में शिलाजित है. इसमें त्रिफला जूस का भावना दिया करके वसंत मेहरस बनाया, विच इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. तो इसलिए वसंत मेहरस और वसंत कुसुमाकर 2 अलग अलग चीजें. तोमर जी को पता होगा, वसंत कुसुमाकर रस का हमने क्लिनिकल एक एमडी पीएचडी थीसिस सपोर्ट किया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी से. पोद्दार आयुर्वेदिक कॉलेज, वर्ली पोद्दार आयुर्वेदिक कॉलेज में 2 पीएचडी थीसिस डाबर वसंत कुसुमाकर के नाम से स्पॉन्सर्ड हुआ था, जहाँ पे करीब 400 पेशेंट्स, 300 से 400 पेशेंट्स में स्टडी हुआ है. वहाँ पे ये पाया गया, डाबर वसंत कुसुमाकर लेने से एक तो शुगर तो कंट्रोल होता है, लेकिन जैसे तोमर जी ने भी गाइड दिया था, शुगर डायबिटीज में शुगर इज नॉट मेन. शुगर के साथ बाकी जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, विजन डिस्टर्बेंस होते हैं, अल्सर्स होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन. डायबिटिक साइकिल जो होती है, डायबिटिक कैटरैक्ट होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस होती है. तो ऐसे कंडीशंस में वसंत कुसुमाकर का एज ए रसायन इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. इट इज अरेस्टिंग द डायबिटिक कैटरैक्ट, इट इज अरेस्टिंग द डायबिटिक रेटिनोपैथी, व्हिच इज क्लिनिकली प्रूवन. मैं नहीं कर रहा हूँ, तोमर जी का अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मैं तो इतना ज्यादा क्लिनिशियन नहीं हूँ.
I'm a Rashastri, so I don't practice like Tomarji, but it is clinically proven in clinical trials that Dabur Vasant Kusmakara prevents cataract development and retinopathy. Then coming to Glycodab. Glycodab, अभी तोमर जी ने एक बहुत वैलिड पॉइंट कहता है शुरू में, अगर पूर्व रूप के टाइम में ही इसको कंट्रोल किया जाए तो ये डायबिटीज आगे के स्टेज में नहीं पहुंच पाएगा. आज अगर हम लोग इंडिया का पॉपुलेशन देखेंगे, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एज यू ऑल नो. इसमें 50% ऑफ द लोग आर इन द अर्ली स्टेजेस में है, प्री डायबिटिक स्टेज में है. मतलब हम लोग उस स्टेज में इसको कंट्रोल कर सकते. उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ग्लाइकोडेप टैबलेट्स डेवलप किया था प्री डायबिटिस के लिए, प्री डायबिटिक कंडीशंस के लिए ग्लाइकोडेप. इसमें आंवला चूर्ण, जो आंवला का जो बीज होती है ना, आम्र बीज, राइट, उसका मज्जा का बहुत की इंग्रेडिएंट है, उससे इसका इफेक्ट ज्यादा होती है. तो इसलिए ग्लाइकोडेप डेवलप किया था प्री डायबिटिस के लिए. डायबिटीज डेवलप हो गया, कॉम्प्लिकेशन है, वसंत कुसुमा का रस हो गया. डायबिटीज को कंट्रोल करने का है चंद्रप्रभा वटी, जैसे तोमर जी ने गाइडेंस किया, चंद्रप्रभा वटी है, गिलोय है, मेथी है. और जब प्री डायबिटीज है ग्लाइकोडेप. ग्लाइकोडेप को आपको सबको बता दूं मैं, अभी हमने एक बहुत बड़ा क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, करीब 6000 पेशेंट्स इसमें एनरोल्ड है, 6000 पेशेंट्स एनरोल्ड है ग्लाइकोडेप ट्रायल पे, एंड इट इज बीइंग डूइंग विद द बैंगलोर यूनिवर्सिटी व्हिच इज अंडर प्रोग्रेस नाउ. थैंक यू पीयूष. थैंक यू सर. और तो तोमर जी. डॉक्टर तोमर, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी डॉक्टर्स पूछ रहे हैं कि डायबिटीज के साथ साथ हाइपरटेंशन इज ए वेरी कॉमन कोमॉर्बिड कंडीशन, सो प्लीज हैव सम व्यू कि कैसे दोनों को साथ में मैनेज करें एंड क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा. देखिए, आप समझ लीजिए कि शुगर, डायबिटीज अपने आप में तमाम रोगों को निमंत्रण देती है, तो शुगर कंट्रोल तो अपनी जगह पर है. और हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए वो चाहे तो इसको नोट कर लें, योगेंद्र रस, नागार्जुनाभ्र, अमृता सत्व और मुक्ता पंचामृत, इस कॉम्बिनेशन को अगर आप साथ देते हैं तो आपका हार्ट कंप्लीटली सेफ रहेगा और ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल रहेगा. और साथ में आप सर्पगंधा घनबटी इसका प्रयोग करें, और अश्वगंधा का कैप्सूल अश्वगंधा दे सकते हैं, स्ट्रेस कॉम दे सकते हैं, इसका आप प्रयोग करें तो आपका ब्लड प्रेशर अलोंग विद द ब्लड प्रेशर, डायबिटीज विल बी कंट्रोल्ड एंड ब्लड प्रेशर आल्सो बी कंट्रोल्ड. राइट सर, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन काफी डॉक्टर्स का आया है कि लाइक वी कैन सी इन द पेशेंट्स अभी फास्टिंग ब्लड शुगर या पीपी ब्लड शुगर अलग अलग रेज करता है, किसी का फास्टिंग रेज करता है, किसी का पीपी, एंड अभी दीज डेज HbA1c टेस्ट इज आल्सो बीइंग फॉलोड क्लिनिकली. सो इन सारे प्रोटोकॉल्स, सारे इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंगली हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए एंड कैसे वी नीड टू मैनेज आवर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल. देखिए, द पर्सन हु इज हैविंग रेज्ड लेवल ऑफ द फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, इन पेशेंट्स में तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि बसंत कुसुमाकर आपको देना ही है. और जिन पेशेंट्स में पीपी बढ़ता है, फास्टिंग नॉर्मल रहता है, इसका मतलब अग्नि वैषम्य है. तो उस अग्नि वैषम्य को दूर करने के लिए उनको अग्नि की चिकित्सा करना बहुत आवश्यक है कोष्ठ के अकॉर्डिंगली. उसमें आप चित्रकारी बटी का प्रयोग कर सकते हैं, बिस्तिंदुक बटी दे सकते हैं. इन औषधियों का प्रयोग आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा. यू विल हैव टू प्रोवोक द अग्नि. आफ्टर द प्रोवोकेशन ऑफ द अग्नि, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अग्नि आपकी प्रोवोक करेगी तो आपका ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिकली डाउन आएगा, क्योंकि पीपी लेवल बढ़ा होता है और फास्टिंग नॉर्मल होता है, उनमें अग्नि वैषम्य इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज. और जिनका अग्नि फास्टिंग लेवल बढ़ा हुआ है उन्हें बसंत कुसुमाकर देना बहुत जरूरी है. राइट सर. कुछ डॉक्टर्स ने शोधन चिकित्सा पंचकर्मा का भी रोल डायबिटीज में पूछा है कि शोधन चिकित्सा के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है. देखिए, आपको मैं बताऊं कि मैं शोधन को केवल लिमिटाइज, आई एम नॉट रिकमेंडिंग द पंचकर्म थेरापी. मैं जो करता हूं पेशेंट्स में, स्थूल प्रमेही बलवान एक कृशस्तथैका पर दुर्बलस्य संबृंगणम तस्य कृशस्य कार्यम संशोधनम दोष बलाधिकस्य. जो स्थूल रोगी हैं, ओबेज पेशेंट्स हैं, टाइप NIDDM के पेशेंट्स हैं, उनमें आप कोष्ठ शुद्धि कराइए. आप चाहे पंचकर्म पूरा कराएं न कराएं, लेकिन कोष्ठ शुद्धि प्रायोरिटी पे कराइए. अभिशुद्धे शरीरे ही युक्तो रसायनो विधि बाजी करो वा मल्ले बस रंगे वा फला. If you are giving the patient Basant Kusmakar Ras or Shilajit without purification of the coast, there will be no utilization of this thing in the patient concerned. That's why you will have to purify the coast. उसके लिए क्या करना, आपको त्रिफला से प्रारंभ करिए. कोस्ट देखिए कि क्रूड कोस्ट है, मध्य कोस्ट है, या आपका मृदु कोस्ट है, ये आपको देखना पड़ेगा. मैं तो ये रिकमेंड करता हूं
कि नारियल का डाबर का आता है आपका रोगन बादाम, रोगन बादाम को दूध में डाल के पेशेंट को खिलाता हूँ, अंजीर डालता हूँ, थोड़ा बहुत मीठा जरूर है, मुनक्का और अंजीर, 2 मुनक्का 2 अंजीर दूध में मिला के दीजिए। कोष्ठ शुद्धि होना बहुत आवश्यक है और ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। सम पेशेंट may be affected simply with the after giving this important drug that I'm telling you, त्रिफला चूर्ण। किसी पेशेंट को पंचकर देना पड़ता है, किसी को मैं आपका त्रिफला डाबर का आपका आता है जो ट्रिपगोल, और उस पेशेंट को लाभ अकॉर्डिंग टू द कोस्ट यू विल हैव टू प्यूरिफाई द कोस्ट। पूरा पंचकर्म आप कराएं न कराएं, कराने का लाभ होता है, लेकिन बेस्ट तरीका आपका ये है कि आप कोस्ट शुद्धि रखें। इज इज सफिशिएंट फॉर द पेशेंट मैनेजमेंट, और आईडीडीएम के पेशेंट में इसकी जरूरत नहीं है। राइट सर, थैंक यू। डायबिटीज मैनेजमेंट इन प्रेगनेंसी पे काफी डॉक्टर्स का क्वेश्चन और क्वेरी आ रहा है सर। प्रेगनेंसी में कौन सी आयुर्वेदिक ड्रग्स हम दे सकते हैं? देखिए, हमारी दवाएं में विशेष रूप से जो औषधि मैंने चर्चा किया, हल्दी का प्रयोग जब आप करते हैं तो विशेष रूप से हल्दी की जो तीव्रता है उसको मात्रा में आपने लेके आंवले का प्रयोग आप कर सकते हैं, और साथ साथ में बसंत कुसुमाकर को जैसे ने इंटरप्रेट डोज बताया, महीने में 20 दिन की जगह पे आप 10 डेज दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। ग्लाइकोडेव कैन बी गिवन, चंद्रप्रभावती कैन बी गिवन, देयर इज नो हार्म एट ऑल। इनमें कोई औषधि ऐसी नहीं है जिसको हम लोग साइड इफेक्ट के रूप में निकालें हैं कि डायबिटीज के पेशेंट को, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी को जांच करा के अगर उसको हाइपरटेंशन हो रहा है, कोई टॉक्सिमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, एल्बुमिनूरिया हो रहा है, इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखें। और मैं तो ये कहता हूं कि चंद्रप्रभावती कैन बी गिवन थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी पीरियड विदाउट एनी हर्डल, ये हम दे सकते हैं। राइट सर, थैंक यू। Dr. Durga Prasad, actually few doctors are asking this clarification as well, and we also know that Dabur is having like in past also we have seen these kind of community camps and events for the diabetic management. So how if they want to, after maybe some situations will be normal, so is there any mechanism they can connect and take it forward if somebody wants to take diabetes camp and all these aspects? Sir? Yes. Yeah, sir. Sorry. Bolo, please. Sir, actually many doctors are asking that they have seen that Dabur is doing these kind of activities. जैसे Dr. Tomar ने अभी इतना अच्छा हमें insight दिया about diabetes. So if they want to take it forward in terms of doing diabetes camps in their societies and vicinities, so what is the mechanism? Many doctors are not clear that how they can do support with Dabur of that. We are continuously doing OPD camps, diabetic OPD camps. Not only diabetic, we are doing diabetic OPD camps, cardiac OPD camps regularly. Every month we are doing almost 300 to 400 OPD camps with our doctors. So we are also very eager to take it forward so that we can control the condition at as early as possible and very successfully. So OPD camps and regular screening are the one thing which we recommend. Basis the screening, recommended medicines can be given, but the OPD camps regularly, health camps which we are doing are one of the things by which we can screen the patients and we can contribute to the society. So right. I request, because we have a sales team of about 600 people. With the 600 people, every representative is doing OPD camp with his doctors. So we can also contact with you the doctors presenting in this forum and do the OPD camps with the doctors, so that patients in their area can be benefited. So we request all the doctors who are interested, you can right now just put your details in the chat section and we will connect you. Dr. Tomar, next question, आपने डाइट के ऊपर काफी अच्छे से हमें सभी समझाया, but there are some questions about दो एस्पेक्ट्स में डॉक्टर्स जानना चाह रहे हैं। एक तो मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड थोड़ी भ्रांतियां और कंफ्यूजन है सोसाइटी में, उसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। सेकंड, जो आटे की आपने बात करी, तो मैनी पीपल आर नाउ नॉट टेकिंग वीट, वो खाली मिलेट मिक्स या ऐसे आटों पे ज्यादा जा रहे हैं जिसमें वीट नहीं है, उस पर सर थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन देंगे? देखिए, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने लिया। जहां तक मिल्क प्रोडक्ट्स का बात है, ये जानना चाहिए हम लोगों को कि डायबिटीज इज नॉट मियरली द डिसीज ऑफ द अल्टरेशन इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू नो द फॉल्टी द फैट मेटाबॉलिज्म आल्सो देयर। तो हमको फ्राइड चीजों को तो बचानी चाहिए, घी तेल का प्रयोग कम से कम करें और रिफाइंड भूल जाएं।
रिफाइंड का प्रयोग कंप्लीटली बंद होना चाहिए। आप बिल्कुल अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं तो ट्राई टू बिल्कुल गेट रिड फ्रॉम द रिफाइंड ऑयल। शुद्ध सरसों का तेल, तिल तेल या ग्राउंड नट ऑयल, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको जहां तक आपने इसका सवाल किया कि गेहूं के बारे में, तो आप देखिए कि अगर मान लीजिए साउथ इंडिया में, अभी मेरा एक लेक्चर साउथ इंडिया में हुआ, तो वहां अगर लोगों का डाइट ही चावल है, उनसे अगर आप कहेंगे कि साहब चावल मत खाइए, आलू चावल चीनी मत खाइए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको देखना यह होगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स चावल की किस वैरायटी का कम है। हमारे आचार्यों ने जो लिखा, साठी चावल 60 डे की क्रॉप है, इस चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सारे अन्न से कम है, इवन गेहूं के ग्लाइसेमिक इंडेक्स से भी कम है। तो आपको ये देखना होगा कि मल्टीग्रेन आटा जो आ रहा है आजकल, तमाम लोग इसको यूज करना शुरू कर दिए हैं, तो गेहूं का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने गेहूं का इसलिए रखा कि ये बेल्ट जो है, नॉर्मली जो रोटी वाले बेल्ट वाला है आपका, जो नॉर्थ इंडिया वाला, तो वहां रोटी में अगर यूज करना भी चाहते हैं गेहूं, तो गेहूं के साथ में जौ मिला के करें, 50% करें। जौ की मात्रा जितना ज्यादा मिलाएंगे उतना लाभ होगा। और दूसरी बात, अन्य आटों में जहां तक सवाल है, और उसका सवाल है, तो मैंने बताया जो घी तेल का प्रयोग कम से कम करें, नमक का प्रयोग भी कम करें, क्योंकि आपको वाइटल पार्ट्स को बचाना है। और साथ साथ में आटे में जितना ज्यादा क्वांटिटी आप बना सकते हैं जौ का, 50-50 बना रहे हैं, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। दैट्स वेरी यूजफुल। राइट सर, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी आपने एक्सप्लेन किया अपने टॉक में, स्टिल काफी डॉक्टर्स टाइप 1 डायबिटीज या इंसुलिन डिपेंडेंट पे थोड़ा सा और इनसाइट सर आपसे चाहते हैं। टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट को कैसे मैनेज किया जाए क्लिनिक्स में? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया आपको कि ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ मेडिकेशन हैज गॉट इट्स ओन लिमिटेशंस। If the patient is having type 1 diabetes, no doubt initially he need to take the modern treatment. आपको इंसुलिन की पेशेंट जरूरत है तो लेगा, कैसे आप उससे मुक्ति पाएं? नंबर 1, 2 आपके ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टाइप 1 डायबिटीज में। पहला ये होगा, नंबर 1, हाउ टू गेट रिड फ्रॉम द इंसुलिन थेरापी, नंबर 1। ये पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कैसा है कि इंसुलिन के जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और आपके वाइटल पार्ट्स की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, along with the insulin therapy, you will have to use the Ayurvedic drugs to maintain the integrity of the vital parts. It will not be simply effective. ऐसा नहीं है कि साहब आपने कर दिया और इंसुलिन बंद कर दिया। Gradually, you just experience. Gradually, you can reduce the dose of the insulin. धीरे धीरे कम कम। कुछ पेशेंट्स की मैंने बताऊं, 70% पेशेंट मेरे ऐसे हैं जिनकी कि मैंने इंसुलिन की डोज को रिड्यूस करना शुरू किया। 2 टाइप की इंसुलिन ले रहे थे, 1 टाइप की इंसुलिन पे आ गए, फिर उसी इंसुलिन की डोजेज कम करना शुरू किया, उसके बाद में उसका फ्रीक्वेंसी कम किया, और फ्रीक्वेंसी कम करने के बाद 1 टाइम इंसुलिन लेना शुरू किया, और उसके बाद में इंसुलिन को बंद किया। और जिन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को पेशेंट दे रहा था, उन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के द्वारा पेशेंट आना शुरू हुआ। पहली बात, 2 तरह का प्रमेय है। फर्स्ट वन इज द टाइम इज ओवर। आई थिंक योर टाइम इज ओवर। नहीं सर, नहीं, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में आपको इंसुलिन को जो है कैसे आप मुक्त करें, तो इंसुलिन के साथ साथ में दवा दें। और ये ना कसम खाना, ऐसा नहीं करना है कि पेशेंट को एक्यूट इमरजेंसी है, आपने इंसुलिन बंद कर दिया, पेशेंट डायबिटिक कोमा में चला जाए। तो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए ग्रेजुअली आप अपनी चिकित्सा में, इसमें बसंत कुसुमाकर के अलावा कोई विकल्प नहीं है। निशा अमल की योग एंड बसंत कुसुमाकर रस, 2 औषधियों को आप प्रारंभ करें और ग्रेजुअली करके आप देखेंगे कि आप डोज को कम करेंगे। यू विल बी सक्सेसफुली रिड्यूस द डोज ऑफ द इंसुलिन विद इन मीन टाइम। दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड आफ्टर doing the personal in your clinical practice. They can personally experience this thing. Okay, right sir, the next question is, as you have already mentioned about vegetables, fruits के बारे में सर थोड़ा विस्तार से बताएं, कौन कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए? देखिए, फ्रूट्स में पेशेंट को जो फ्रूट्स खाना है, पहले तो एकदम पके हुए फ्रूट्स नहीं खाना है। पहली बात, अंगूर का सेवन न करें, ग्रेप्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ग्रेप्स न लिया जाए। सेव ले सकते हैं, छोटा सेव, और साथ साथ में छोटे सेव के साथ साथ में पपीता वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन एकदम पका हुआ नहीं, कम पका हुआ इसका आप सेवन कर सकते हैं। केले को भी बचाएं, केला का भी सेवन कम करें।
अनार ले सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम क्वांटिटी में। ये सारे फ्रूट्स की क्वांटिटी फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज उतना ज्यादा ग्लूकोज को बढ़ाने में काम नहीं करेगा, पहली बात। और दूसरी बात आप समझिए कि ये जो डाइट में आपने जैसे बताया कि फ्रूट्स को हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो फ्रूट्स को लेने के पहले ये विशेष ध्यान रखें कि एक ICMR का कन्वर्सन टेबल है, हमारी किताब में भी दिया हुआ है, और वैसे अलग से भी आप देख सकते हैं, नेट पे भी देख सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट को आप चपाती रिकमेंड कर रहे हैं, उसका मन होता है कि हम चावल खाएंगे, बिल्कुल चावल रोकना नहीं है। आप उसे कहेंगे कि एक 25 ग्राम रोटी की, आटे की बनी हुई जो आपका रोटी है जिसका 6 इंच जो रेडियस है, उस रोटी में भी 80 कैलोरीज होती हैं। एक 25 ग्राम छोटी कटोरी चावल होता है, उस कटोरी चावल में भी 80 कैलोरीज होती हैं। तो ही कैन रिप्लेस 1 चपाती विद 1 कटोरी ऑफ राइस। अगर वो 4 रोटी खाता है तो आप 3 रोटी खाए, 1 कटोरी चावल ले। इस प्रकार से आपको मैनेज करना है, अपने डाइट को कंट्रोल रखना है। और देसी घी का प्रयोग एकदम बंद करने का विधान नहीं है, देसी घी आप ले सकते हैं। आपको ये मैं जानकारी देना चाहूंगा, आप लोगों ने खुद देखेंगे इसको, कि हरिमोहन शर्मा इन ग्लासगो यूनिवर्सिटी डिड ए मार्वेलस रिसर्च ऑन देसी घी, क्योंकि घी का मतलब होता है आयुर्वेद में गाय का घी, दुग्ध का मतलब होता है गाय का दुग्ध, लिखा हुआ है हमारी संहिताओं में, कि अदरवाइज न लिखा हो तो से यह ग्रहण करें। तो देसी घी के बारे में लिखा है गाय के में कि इट हैज गॉट द ट्रिमेंडस क्वालिटी टू रिड्यूस द बैड कोलेस्ट्रॉल ऑन वन हैंड एंड इंक्रीज द गुड कोलेस्ट्रॉल ऑन अदर। ये ट्राइग्लिसराइड LDL को कम करता है और आपके HDL को बढ़ाता है, प्रोवाइडेड द प्योर काउज मिल्क घी मस्ट बी देयर। अब ये कंपनीज कौन सी क्या बना रही है ये नहीं कह सकते। गाय का देसी घी कैन बी गिवन टू द पेशेंट, लेना ही चाहिए एक मात्रा में, जो मैंने किताब में डाइट चार्ट में दिया हुआ है, वो मैं बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा। तो दुर्गा प्रसाद जी वो डाइट चार्ट सब लोगों को आप पहुंचा दीजिए। एक हमारे राजेंद्र कुमार सिंह हमारे यहाँ टेरिटरी मैनेजर हैं, उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ही इज वेरी एक्टिव मैन और ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब फॉर डाबर इंडिया लिमिटेड, और उनको मैं बता दूंगा, किताब का भेज दूंगा। तो उसके माध्यम से उस डाइट चार्ट को आप सब लोगों को सर्कुलेट कर दीजिए बिल से, जिसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। उसमें आपकी मॉर्निंग से लेकर के शाम तक का डे वाइज, मंडे टू संडे आई हैव डिस्क्राइब, दैट विल बी वेरी यूजफुल। राइट सर, थैंक यू सर। क्विकली 2-3 एस्पेक्ट्स और आ रहे हैं। एक रीनल फेलियर या रीनल की तरफ फेलियर की तरफ केसेस जाते हैं, एंड सेकंड इज डायबिटिक फुट अल्सर हैं, अगर इश्यूज हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, थोड़ा सा सर इन पे भी प्रकाश डालें। देखिए, मैंने जो है डायबिटिक फुट अल्सर पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए कहना चाहूंगा कि एवरीबडी इज अवेयर कि डायबिटिक पेशेंट्स आर हैविंग डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसलिए रोगी को आज दी पेशेंट कि शाम को सवेरे नहाते समय, पैर धोते समय सावधानी से धोएं और देखें कहीं आपको घाव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि चोट लगने का पता नहीं चलता न्यूरोपैथी की वजह से। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर घाव होता है तो जाता तेल लगाएं, नंबर 1। शुगर का कंट्रोल करना मस्ट है। और साथ में एक प्रयोग मैंने किया प्रवेक कंपनी का, नर्वोकल्प कैप्सूल इज देयर। नर्वोकल्प से मैंने देखा कि ऐसे पेशेंट्स के वुंड हीलिंग में इट हैज गॉट द वंडरफुल रोल। एंड स्नैक 30 ऑफ आर्बर फार्मास्यूटिकल्स both can be given along with the anti-diabetic treatment and local treatment, local management। तो आपको लाभ मिलेगा, नंबर 1। और जो रीनल फेलियर की बात आपने कहा कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज द बिगेस्ट हर्डल, वहां आपको शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ में एक औषधि आपके पास है, तृण पंचमूल क्वाथ। तृण पंचमूल क्वाथ मस्ट बी गिवन टू द पेशेंट्स इन द प्रॉपर डोज। माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस थिंग कि तृण पंचमूल क्वाथ आपको मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें तृण पंचमूल लिखा है, पता लगा 3 मूल डाला है, किसी ने 2 मूल डाला है। इफ यू प्रोक्योर द तृण पंचमूल क्वाथ इन द प्रॉपर वे, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा दुर्गा प्रसाद जी से कि तृण पंचमूल क्वाथ की बटी बनवा दें, घन बटी, या तृण पंचमूल क्वाथ को आप प्रवाही इस तरह का क्वाथ बनवा दें, शुगर फ्री। दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर डायबिटिक नेफ्रोपैथी। बहुत सी कंपनी ने बहुत कीमत बढ़ा करके पेशेंट्स को 500-600 रुपए में केवल तृण पंचमूल क्वाथ को ही तैयार करके दिया हुआ है। दैट इज वेरी इफेक्टिव। गोखरू काढ़ा एंड तृण पंचमूल क्वाथ एंड पुनर्नवा क्वाथ,
ये 3 चीजों को आप प्रयोग करें तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में 12 मिलीग्राम सीरम क्रिएटिनिन को भी रिड्यूस करके आपने डायलिसिस से भी मुक्ति दिला सकते हैं रोगी को। जो पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं उनकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी उन्हीं पर छोड़ दीजिए जो आपके डायबिटोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। वो खुद कहेंगे जांच करने के बाद नहीं आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। सप्ताह में 2 बार करते थे, वो सप्ताह में 1 बार करेंगे, फिर 15 दिन में 1 बार करेंगे। ग्रेजुअली दे कैन विथड्रॉ दिस थिंग। तो दे कैन यूज तृण पंचमूलक्वाथ, गोखरू काढ़ा एंड पुनर्नवादिक्वाथ for such type of the patients along with the anti-diabetic treatment. Okay? राइट सर, थैंक यू सो मच। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर है और मेरे पर्सनली भी मेरे मन में भी ये क्वेश्चन रहता है इन टर्म्स ऑफ वाटर और टोटल फ्लूइड इनटेक इन 24 आवर्स। तो हम डायबिटीज या अगर उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ पेशेंट जा रहे हैं तो हम कैसे उसमें एडवाइस करें कि फ्लूइड मैनेजमेंट हम टोटल कितना रखें 24 आवर्स में? देखिए, जब पेशेंट डायबिटिक हो जाता है उस कंडीशन में सॉरी नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाती है तो आपके फिजिशियंस बताएंगे नेफ्रोलॉजिस्ट 1.5 लीटर से ज्यादा मत पीजिए, 1.5 लीटर से ज्यादा मत लीजिए। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आप 2 to 3 लीटर्स, सामान्य कंडीशन में आप इसे अधिक न करें। अगर आप डायबिटिक हैं और आपको आईओ चार्ट, इनटेक एंड आउटपुट को अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना होगा, ये इंडिविजुअल पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। Right, sir. Thank you so much. I think we have tried to cover all the questions and we are already on time. And I request Dr. Durga Prasad for the concluding remarks. Let me just unmute you, sir. Just a second. I personally thank Dr. Tomar. I think अगर सर को फादर ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट इन मॉडर्न एरा इन नहीं, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टिल स्टूडेंट। इतना एग्जॉस्टिव नॉलेज लाइफ में मैंने पहली बार सुना है। थैंक्स टू डॉक्टर दुर्गा प्रसाद। तो आई विल बी कीप ऑन डिस्टर्बिंग यू पर्सनली। एंड काफी डॉक्टर्स का यहाँ पर सर क्वेश्चन आ रहा है, क्या मैकेनिज्म है अगर आपसे गाइडेंस लेना है या आपसे आगे कंटिन्यू करना है आफ्टर दिस सेशन, तो कैसे? durgaprasad.com डाबर से जो लोग जुड़े हुए हैं, राइट सर, मैं ये चाहता हूं कि डाबर के माध्यम से आई वुड लाइक टू रीच विद ऑल द फिजिशियंस। मैं पहुंचूंगा और हमारा डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं, हमारा मेल ले सकते हैं, आप हमारा मेल इनको शेयर कर सकते हैं। राइट सो सर, दे कैन कम्युनिकेट मी। लेकिन टाइम का रेस्ट्रिक्शन है कि सवेरे से शाम तक हमारी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स रहती हैं। राइट सर, तो मैं लॉकडाउन में भी बिजी हूँ, आई तो अंडरस्टैंड। समय थोड़ा सा पूछ करके बात करेंगे। ओके Piyush, राइट सर, Piyush, we will help the doctors to reach out to Tomarji. Tomarji, as you know, he is a very busy person. आपको बता रहे फेसबुक में उसका डेली सेमिनार्स वेबिनार्स कंटिन्यूअसली हो रहा है। राइट इट्स सर, आवर प्रिविलेज दैट Tomarji has given some time for us today and because see इसमें 3 चीजें, अगर आप आज का टॉपिक देखोगे, अभी भी देख रहा था भाई 1.5 घंटा हो गया, अभी भी लोगों का डॉक्टर्स का क्वेरीज आ रहा है। तोमर जी भी इसका रिप्लाई करते जा रहा है। बट आज देखिए 90 मिनट्स हो गया था, हमारा हाफ एन आवर का सेशन था। अब देखिए इसमें 3 चीजें हैं, मैं सारे डॉक्टर से शेयर करना चाहता हूँ। एक तो आयुर्वेद है, हमको बताया था आयुर्वेद जो समुद्र में पर्यंतम आयुर्वेदम, जितने समुद्र का गहराई है उतना आयुर्वेद है ही है, नंबर 1। नंबर 2 सब्जेक्ट डायबिटीज है, जितना भी बात करो डायबिटीज के बारे में वो कमी है। नंबर 3 टॉपिक डिस्कस करें तोमर जी डायबिटीज आयुर्वेद, तीनों कभी खत्म नहीं होने वाला है ना। ये तो घंटे घंटे किसी में क्वेरी, एक पोस्ट देख रहा था किसी डॉक्टर सर तोमर जी, किसी डॉक्टर ने पूछ रहे थे क्या तोमर जी से हमको 4-5 दिन का सेमिनार चाहिए, 4-5 दिन 5 दिन का सेमिनार चाहिए डायबिटीज में ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये बहुत ही इवेंटफुल वेबिनार रहा आज हमारा। थैंक यू वेरी मच तोमर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग अस। Okay, thank you. We will continue to host such informative webinars in the future also. और मैं चाहता हूं कि आगे भी आप जो है, आगे भी आप अभी हमारा शेड्यूल पूछ के पता करके आगे भी आप ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इनकी जो बाकी की क्वेरीज हैं उनको हम जवाब भी देंगे और किसी दूसरे सब्जेक्ट पर रखेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सेकंड थिंग, जैसे एक हमारे लिए भी एक अच्छा सुझाव दिया था तोमर जी ने, तृण पंचमूल काढ़ा का टैबलेट बनाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए। इमीडिएटली वी विल टेक इट अप एज ए न्यू प्रोडक्ट सर। इमीडिएटली हम लोग इसको डेवलप करेंगे। अच्छा आइडिया दिया आपने। और बाकी जो डाइट चार्ट का और आयुर्वेदिक जो टेक्स्ट बुक जो डॉक्टर साहब ने देने वाले थे, सारे डॉक्टर्स को हम लोग प्रिंट करके सबको सर्कुलेट करेंगे हम, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव with our Dabur Ayurveda is to promote Ayurveda to each and every household.
जितने ज्यादा डॉक्टर्स को, जितने ज्यादा कंज्यूमर्स को द मेरिट्स ऑफ आयुर्वेदा पता चलेगा, ऑलरेडी इसका यूज उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो सारे क्योंकि जितने डॉक्टर्स को ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और यूज करना है इसे। चंद्रप्रभा वाटी हमारे पास इतना अच्छी चीज है, वसंत कुसुमा का इतना बढ़िया सा रसायन हमारे पास है, अगर इसको यूज करें, इसका लाभ देखें, तो ऑटोमेटिकली इसका यूसेज और ज्यादा बढ़ेगा। तो we'll continue to support all the Ayurveda promotional activities from on the road up. 10,000 बुक्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करा दी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अमेरिका में कम से कम 300 डॉक्टर्स हैं जिनको मैंने ऑनलाइन किताब भेजी है, बड़ी इसकी डिमांड थी, तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, आप इनको उपलब्ध जरूर कराएं हमारे फिजिशियंस को, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा जुनेश जी, पीयूष। एक हमारा एक लीडिंग डॉक्टर है, सिमिलरली जैसे तोमर जी है, वैसे हमारा एक लीडिंग डॉक्टर गुजरात में है, आनंद में। तो वो डॉक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट है, आयुर्वेद के साथ कैंसर स्पेशलिस्ट है। उन्होंने गुजराती लैंग्वेज में कैंसर के बारे में बुक लिखा था, डाबर का स्पॉन्सर करके, और डाबर का कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं कैंसर में उन्होंने। तो उस बुक को गुजराती में हमने करीब 75,000 डॉक्टर्स को गुजराती में रीप्रिंट करके 75,000 डॉक्टर्स को हमने गुजराती में भेजा है। तो अगर सिमिलरली तोमर जी का भी बुक को भी हम लोग रीप्रिंट करके हम सारे डॉक्टर्स को, बिकॉज सच नॉलेज हैज टू बी शेयर्ड विद ऑल द डॉक्टर्स, we will definitely share the information with all the doctors. So thank you doctors, thank you very much for sharing, sitting with us today in the working hours. We will be continuing with such informative webinars in future also. अच्छे टॉपिक्स हम लोग लेके आएंगे। होप यू ऑल लाइक टुडेस वेबिनार। थैंक यू वेरी मच। और मेरी तरफ से सारे पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार कहिए, सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत नमस्कार। और टीचर्स को झेलने की क्षमता है इन लोगों में, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नहीं सर, थैंक यू सो मच। सी टीचर्स तभी झेले जाते हैं जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, जैसे आज आपने हमें एज ए गाइड किया, सो मैं बड़ी मुश्किल रोक पा रहा था क्वेश्चंस को। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, काफी क्वेश्चंस रिपीट के आए हैं, तो वी लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द एंटायर रिकॉर्डिंग वी हैव डन ऑफ दिस सेशन एंड वी विल अपलोड ऑन यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक एज वेल, एंड वी विल शेयर द लिंक विद ऑल द डॉक्टर्स। सो काफी डॉक्टर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर का कोई मिस हो गया बात, या डोज या डाइट को रिपीट करवा दें, वो क्वेश्चंस में था। सॉरी, आई हैव इग्नोर्ड दैट, बिकॉज हमें ये पता है कि हम इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे, तो आप उसको रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं। एंड सर, एक और रिक्वेस्ट आ रहा है काफी डॉक्टर्स का कि आपका ये पूरा सेशन वो अपने पेशेंट्स के साथ भी शेयर करना चाह रहे हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट इन्फॉर्म्ड। सो आई थिंक ब्यूटी ऑफ सेशन इज डॉक्टर्स भी इजीली समझ सकते हैं और एक पेशेंट भी उसको इजीली समझ सकता है। Thank you so much, sir, again for your time today. Okay, sir. Thank you so much. Thank you, sir. All right. Thank you. Right, thank you.